Hello dear children, how are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today we are going to start with our English course book of standard 8th, that is chapter number 9, Blackwood House, that is textual exercise. This is part 3 video. I hope dear children you would all have watched part 1 and part 2 videos and would have understood the chapter properly. Today we are going to do the textual exercise. In that, the grammar part first we are going to start. Now this grammar part you are already done in grammar textbook we have done, that is conditionals. In this, the zero conditional is not given, only three conditionals are being given. Type 1 conditional, that is type 1 conditional में what I have explained you that type 1 conditional what is the rule कि if clause में if के साथ जो form होता है वो होता है present form. If plus present form is there and in the conditional clause जो होता है उसमें what will be the form future time. It means will plus verb means bare infinitive होता है. तो मेन क्लॉज का होता है will प्लस बेयर इन्फिनेटिव और इफ क्लॉज का होता है इफ प्लस प्रेजेंट फॉर्म. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ़ आई सी है वो प्रेजेंट फॉर्म में है एंड जो मेन फॉर्म है उसमें होगा will प्लस बेयर इन्फिनेटिव दैट इज will give. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो इफ़ यू पुट. ये पुट जो है इफ़ क्लॉज वाला वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में है एंड इट विल डिजॉल्व. ये जो मेन क्लॉज का जो वर्ब है दैट इज विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव. देन नेक्स्ट इज टाइप 2 कंडीशनल. टाइप 2 कंडीशनल का रूल क्या होता है इन दैट इफ़ वाला जो इफ़ के साथ जो वर्ब है दैट विल बी पास्ट फॉर्म एंड उसके बाद जो मेन क्लॉज का वर्ब है दैट विल बी मॉडल प्लस वर्ब मीन्स वुड प्लस वर्ब मीन्स बेयर इन्फिनेटिव. दैट इज द फॉर्म. सी द एग्जाम्पल इफ़ आई वेंट. यहाँ पास्ट टेंस आ गया इफ़ क्लॉज में वेंट एंड दूसरे मेन क्लॉज में क्या हो जाएगा वुड प्लस वर्ब मीन्स वुड रेज. आई वुड रेज द इंडियन फ्लैग ऑन इट. Same way in the next example also it is given past tense over here were and would plus verb, understand that way. And then the third type conditional उसमें क्या होता है if clause में if plus past perfect. past perfect what is the rule had plus V3 form होता है एंड मेन क्लॉज के वर्ब में मॉडल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. मॉडल मीन्स वुड एंड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. सी द एग्जाम्पल इन दैट इट इज गिवन इफ शी हैड आस्ड. आ गया हैड प्लस V3 फॉर्म इन इफ क्लॉज एंड यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म हेल्प्ड वुड हैव हेल्प्ड दैट वे. So same thing you have to apply in the exercise also. See the first exercise, what you have to do, you have to match the columns accordingly. In that first one is already been written over here. We will put the numbers over here which is matching with the column A. In column B you have to put the numbers. The first one here it is there कि if Chandu practiced every day. प्रैक्टिस मीन्स यहाँ पास्ट टेंस यूज हुआ है उसके साथ आएगा ही कुड ब्रेक द स्कूल स्पोर्ट्स रिकॉर्ड. दिस वे यू हैव टू मैच. सी द सेकेंड वन प्रीति वुडेंट हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज. उसके साथ सेकेंड वन क्या होगा इफ़ हर फादर हैड नॉट बीन वन ऑफ द जजेस ऑफ द कॉन्टेस्ट. देन थर्ड वन इज इफ़ यू शो योर आइडेंटिटी कार्ड एट द स्कूल गेट. उसके साथ क्या मैच होगा थर्ड वन will be the watchman will let you enter that way. Then fourth one is Ritika would be more popular. उसके साथ fourth one which is matching if she wasn't so arrogant that way. Then fifth one if Teja had informed the police in time. What will be matching with fifth one? They could have caught the thieves before they escaped. Then the sixth one is if we don't book tickets now then the prices will go up. This is the sixth one. And the last one is I would give Shruti a call. With that which one will match if I knew her number that way. Now
see the next exercise. What you have to do, you have to rewrite these sentences in the conditional and you have to mention its type, in which type you are changing it. So how it will come? First one is already been done over here and the type is written over here. So we will write it the same way as I have written here. That way you have to write it in the textbook. See the second one. You did not meet them because you did not arrive a few minutes earlier. अब इसमें if और main को separate करके you have to write if लगा के. If you had arrived a few minutes earlier, you would have met them. इसमें देखो had plus V3 फॉर्म यूज हुआ और इस साइड मेन क्लॉज में would have met. तो दिस इज विच टाइप ऑफ कंडीशनल? वो हो गया थर्ड कंडीशनल. देन सी द थर्ड वन. ही विल इन्वाइट यू देन यू विल सर्टनली कम. तो अब इसमें इफ लगा के विल फ्यूचर आपको दिखाना है, फर्स्ट टाइप. दैट वे यू हैव टू राइट. See in the answer how it will be. If he invites you, you will certainly come. उसमें प्रेजेंट टेंस आता है और मेन में will आपको लगा के सेंटेंस बनाना है. दिस इज टाइप 1 कंडीशनल. See the fourth one. She is disappointed because you did not keep your promise. Now how the answer will change? If you had kept your promise, she would have been disappointed. दिस इज थर्ड टाइप कंडीशनल. ओके, देन थर्ड टाइप कंडीशनल में आपने कैसे पास्ट परफेक्ट आ गया यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा वुड हैव प्लस V3 फॉर्म. दैट वे. देन फिफ्थ वन इज अमन डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट एंड सो ही फेंटेड ड्यूरिंग असेंबली. सी द आंसर. इफ अमन हैड ईटन ब्रेकफास्ट ही वुड नॉट हैव फेंटेड ड्यूरिंग असेंबली. In this also again the same thing, थर्ड टाइप कंडीशनल अप्लाई होता है had प्लस V3 फॉर्म if क्लॉज में और मेन क्लॉज में would प्लस have प्लस V3 फॉर्म. सी द सिक्स्थ वन. अरविंद may fail to qualify for the final. His coach will be shocked. Now in this also what you have to do, if Arvind fails, इसमें will फ्यूचर आपको यूज़ करना है. टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल हिज कोच विल बी शॉक्ड. और इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस हुआ फेल्स एंड मेन क्लॉज में विल प्लस V3 फॉर्म. देन सेवेंथ वन इज सिमरन डिड नॉट रिमेंबर टू क्लोज द डोर. द कैट गॉट इनसाइड द हाउस. How you will use in this? You have to use third conditional. Had plus V3 form if clause में and would plus have plus V3 form in the main clause. So answer will be if Simran had remembered to close the door, the cat would not have got inside the house. It is which type? Third type. The same way in eighth one. See, I am not the principal, otherwise I will make yoga compulsory for all students. Now, which clause you have to use in this? If I was, मतलब past tense use करके, the principal, I would make yoga compulsory for all students. इसमें आपने use किया second clause, means if clause में past tense and main clause में would plus verb, bare infinitive. Now the last one is, I hope our team wins. We can have a celebration. In this, if our team wins, इसमें कौन सा यूज हुआ? प्रेजेंट. इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस और उसके साथ फ्यूचर टेंस टाइम यू हैव टू शो विल प्लस हैव, मीन्स विल प्लस वर्ब. वी विल हैव अ सेलिब्रेशन. ये कौन सा कंडीशनल हो गया? टाइप 1. नाउ नेक्स्ट कम्स द वोकैबुलरी. In this some examples are given over here. 2 sentences. Here the explanation is the words in the color are phrasal verbs. वो जो highlighted words है वो क्या है? phrasal verbs. और phrasal verbs क्या होते हैं? phrasal verbs are verb plus preposition, जिसमें verb के साथ preposition आता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है. दैट मीन समथिंग अदर दैन द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड. अलग अलग वर्ड का जो मीनिंग होता है उससे वो दो का कॉम्बिनेशन का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है. इन दिस सेंटेंसेस गोइंग अप मीन्स बिकमिंग हायर. गोइंग अप मतलब चढ़ना नहीं, हायर इट्स मीन्स हायर. एंड कम डाउन मीन्स टू बिकम लोअर. और कम डाउन मतलब नीचे आना नहीं, बिकम लोअर. द सेम वे
in exercise A, when matching is given, you have to match the words, phrasal verbs are given in this column with B कॉलम उसके मीनिंग्स के साथ, और वो उसके बाद मीनिंग्स आपको देख के नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये फ्रेजल वर्ब्स लगाने हैं. सी द आंसर. पुट ऑफ का मतलब इट इज़ टू पोस्टपोन करना. सेकेंड वन इज ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट मीन्स कॉज, उसका कॉज. सेकेंड वन यू हैव टू पुट द नंबर्स ओवर हियर. देन थर्ड वन इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? मीन्स कैंसल. देन फोर्थ वन इज फॉल अपार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल अपार्ट? इट मीन्स ब्रेक इनटू पीसेस. देन next one, fifth one is set out. Set out means begin a journey. Then the sixth one, show up. Show up means arrive. Sixth one. And the last one is hold on. It means wait or stop doing something. Now अब इसमें जो आपने meanings रीड किए, इसके आपने लिखे, that according to that meaning that you have to apply it in this exercise. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद दैट करेक्ट फ्रेजल वर्ब जो इसमें आएगा, सूट होगा, उसके साथ आपको कंप्लीट करना है. सी द सेकेंड वन, वुड यू प्लीज डैश फॉर अ मिनट, मतलब वेट करना है, तो विच वर्ड यू विल यूज? होल्ड ऑन फॉर अ मिनट वाइल आई ट्रांसफर योर कॉल टू द मैनेजर. द थर्ड वन इज द ओल्ड वास डैश एज आई वॉज क्लीनिंग इट. तो इसमें पीसेस में टूट जाना, तो उसका क्या वर्ड होगा? फ्रेजल वर्ब फेल अपार्ट. द फोर्थ वन इज वी डैश टू विजिट ऑल द प्लेसेस इन द कंट्री विदाउट अ डेफिनाइट प्लान. तो सेट आउट, विच इज सुटेबल फॉर दिस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, दैट इज सेट आउट. देन फिफ्थ वन इज डज कुणाल ऑलवेज डैश लेट फॉर योगा क्लास. तो उसके लिए आपको उसका मीनिंग देख के विच फ्रेजल वर्ब विल कम? शो अप. The sixth one is if you dash your work often, you will find it difficult to complete it later. Means put off. अगर जाने दोगे तो. Then the last one is the meeting was dash because most of the members were on leave. तो cancel हुआ था means called off. So here we end up our textual exercise. Dear children, you have to write this textual exercise how I have written with a pencil in your textbook. Now we will move on to the worksheet. I will explain you the meanings and the question answers. So children, this is the exercise of worksheet of chapter number 9, that is Blackwood House. You have to write this meanings and question answers in your FNB using black and blue pen. So let's begin first with the meanings. There are only 4 meanings in this chapter. So the first meaning is estate agent. What do you mean by estate agent? Yes, वो कौन होता है? Someone whose job is to sell houses and land for other people. जो आदमी का जॉब होता है ये हाउसेस और लैंड बेचना दूसरे लोगों के लिए, उनके बिहाफ पे वो लैंड और घर बेचते हैं. देन द सेकेंड मीनिंग इज इन गुड ऑर्डर. इसका मतलब क्या होता है? इन गुड ऑर्डर मीन्स इन अ गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में, अच्छी हालत में. द थर्ड मीनिंग इज यू विल बी सॉरी. व्हाट इज द थर्ड मीनिंग? यू विल बी सॉरी मीन्स यू विल रेग्रेट योर डिसीशन. मीन्स आपको सॉरी फील होगा अपने डिसीशन पे. देन द लास्ट मीनिंग इज अफोर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय अफोर्ड? टू हैव इनफ मनी टू बी एबल टू बाई समथिंग, कि आपके पास इतने पैसे हो कि आप कुछ खरीद सके. नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स. इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द प्राइस ऑफ ब्लैकवुड हाउस कीप फॉलिंग? I repeat the question, why did the price of Blackwood house keep falling? क्यों गिर रहे थे Blackwood house के prices? So the answer is the price of Blackwood house kept falling because no one wanted the house. क्यों गिर रहे थे? क्योंकि किसी को वो हाउस खरीदना नहीं था. और उसका क्या रीज़न था? They thought that it was haunted by a spirit called the white visitor. उन्हें क्या वो सोचते थे कि इसमें
कुछ भूत का साया है और उसको वो क्या नाम दिया गया था, वाइट विजिटर, जो वाइट कपड़े पहन के आता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज द वाइट विजिटर। आई रिपीट द क्वेश्चन, हु वॉज द वाइट विजिटर। वाइट विजिटर कौन था? तो द वाइट विजिटर वॉज एक्चुअली मिस्टर कूपर डिस्गाइज्ड एज मिस वेरले। वाइट विजिटर कौन था? मिस्टर कूपर था एक्चुअली, जो मिस वेरले के तरह डिस्गाइज मतलब उसका नाम लेके वहाँ पे आता था। एंड द प्रीवियस हु वॉज, मिस वेरले कौन थी? द प्रीवियस ओनर ऑफ द ब्लैकवुड हाउस हु वॉज बिलीव्ड टू बी हॉन्टिंग द हाउस। एक्चुअल में वो मिस्टर कूपर था, बट वो किसके कहता था सभी को कि मिस वेरले अपना हाउस नहीं छोड़ना चाहती थी, बहुत प्यार करती थी और वो हर रात को वहाँ पे आती है, जो उस हाउस की प्रीवियस ओनर थी। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिस्टर कूपर से अबाउट द पर्सन। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर कूपर से अबाउट द पर्सन। मिस्टर कूपर पर्सन के बारे में क्या बता रहे थे कि जिसका वो हाउस था उसके बारे में वो क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। सो द आंसर इज मिस्टर कूपर सेड दैट मिस वार्ले हैड डाइड इन द हाउस 2 years ago। मिस्टर कूपर ने क्या कहा कि मिस वार्ले जो है वो वहाँ पे 2 साल पहले रहती थी, वो वहाँ पे मर चुकी है अब। शी वॉज नॉट अ हैप्पी वूमेन, और वो जो लेडी थी वो इतनी हैप्पी नहीं थी। बट शी लव्ड ब्लैकवुड हाउस, बट उनको वो अपना जो घर था ब्लैकवुड हाउस बहुत ही उसे प्यार करती थी। एंड दैट पीपल सेड, और लोग क्या कहते हैं, दैट शी केम बैक एवरी नाइट टू विजिट हर ओल्ड होम, और हर रात वो उसे इतना प्यार करती थी इसीलिए हर रात वो अपने घर को विजिट करने आती है। एंड शी ऑलवेज वोर अ वाइट ड्रेस, क्या पहन के आती है? वाइट ड्रेस पहन के। वेन शी वॉज अलाइव, और जब जिंदा थी तब भी वाइट ड्रेस ही पहनती थी और रात को भी वो वाइट ड्रेस पहन के वहाँ आती है। एंड सो पीपल कॉल्ड हर द वाइट विजिटर, और इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया था? वाइट विजिटर कहते थे उन्हें, जो वहाँ पे आती थी। देन आवर फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड डॉक्टर नॉर्टन प्रिफर टू बाय ब्लैकवुड हाउस। अब डॉक्टर नॉर्टन जो खरीदने आए थे ब्लैकवुड हाउस, क्यों वो उसे ही प्रीफर कर रहे थे कि वही उन्हें खरीदना है। आई रिपीट द क्वेश्चन, वाई डिड डॉक्टर नॉर्टन प्रिफर टू बाय ब्लैकवुड हाउस, क्यों उन्हें वही खरीदना था हाउस। सो द आंसर इज डॉक्टर नॉर्टन प्रिफर टू बाय ब्लैकवुड हाउस बिकॉज, क्यों खरीदना था? ही कुड अफोर्ड इट, क्योंकि वो उनके लिए अफोर्डेबल था, वो उनके पास उतने पैसे थे कि वो ब्लैकवुड हाउस खरीद सके, उससे महंगा हाउस वो नहीं खरीद सकते थे। बिसाइड्स इट वॉज बिग इनफ फॉर हिम, और वो जो ब्लैकवुड हाउस था उनके लिए बहुत ही बड़ा इनफ था उनको रहने के लिए। एंड इन अ वेरी गुड लोकेशन, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे भी वो घर था। एंड ही डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट, और वो गोस्ट में, भूत में नहीं मानते थे। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन, व्हाट डिड डॉक्टर नॉर्टन वांट मिस्टर कूपर टू आस्क मिस्टर वेरली व्हाई। I repeat the question, what did Dr. Norton want Mr. Cooper to ask Mr. Warley why? डॉक्टर नॉर्टन क्या चाहते थे मिस्टर कूपर मिस्टर वेरली को क्या पूछे, एंड क्यों पूछे वो। सो द आंसर इज डॉक्टर नॉर्टन वांटेड मिस्टर कूपर टू आस्क मिस्टर वेरली वेदर ही वुड अलाउ हिम टू स्लीप इन द ब्लैकवुड हाउस फॉर 1 night बिफोर ही बॉट इट। डॉक्टर नॉर्टन चाहते थे कि मिस्टर कूपर मिस्टर वेरली से ये परमिशन ले ले, क्या वो उन्हें एक रात के लिए उनके घर में ब्लैकवुड हाउस में रहने देना पसंद करेंगे, रहने देंगे एक रात के लिए, वो खरीदे उसके पहले, क्योंकि ही वॉन्टेड टू सी, वहाँ रह के वो देखना चाहते थे कि क्या होता है और क्या नहीं। एंड और ही डिड सो, ये क्यों किया उन्होंने? ही डिड सो बिकॉज he wanted to verify the story of the white visitor haunting the house। उनको जो स्टोरी सुनाई दे रही थी वाइट विजिटर के बारे में, वो उसके लिए वेरीफाई करना चाहते थे कि क्या ये सच बात है। दैट्स वाई उन्होंने मिस्टर कूपर से कहा कि मुझे एक रात यहाँ पे सो। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन
Sixth question is, how would Dr. Norton manage to spend a night in the house without a bed or a light? I repeat the question, how would Dr. Norton manage to spend a night in the house without a bed or a light? तो डॉक्टर नॉर्टन कैसे मैनेज करेंगे कि बेड अगर ना हो, वहाँ पे बेड और लाइट नहीं थी, तो हाउ वुड ही मैनेज, एक रात वहाँ पे कैसे गुजारेंगे? तो अबाउट दैट द आंसर इज, डॉक्टर नॉर्टन वॉज एन ओल्ड सोल्जर. कौन थे डॉक्टर नॉर्टन? एक ओल्ड सोल्जर थे. एंड हैड अ स्मॉल बेड विच ही प्लान्ड टू टेक टू द हाउस. और उनके पास एक फोल्डिंग बेड था छोटा सा, जो उन्होंने प्लान किया कि वो जब वहाँ एक रात गुजारने जाएंगे तब वो बेड लेके अपने साथ जाएंगे. ही ऑल्सो हैड अ स्मॉल लैम्प. और उनके पास एक छोटा सा लैम्प भी था, विच ही थॉट वुड प्रोवाइड हिम विथ सफिशियंट लाइट फॉर वन नाइट. और उनके पास जो छोटा लैम्प था, तो उन्होंने ये सोचा कि इससे मुझे एक रात के लिए लाइट सफिशियंट हो जाएगी. सो दैट वे ही वुड मैनेज. Then our seventh question is, how did Dr. Norton solve the mystery of the white visitor? I repeat the question, how did Dr. Norton solve the mystery of the white visitor? मीन्स ये जो स्टोरी वो सुन रहे थे वाइट विजिटर के बारे में, उसकी मिस्ट्री उन्होंने कैसे सॉल्व की? सो द आंसर इज दैट कि डॉक्टर नॉर्टन रेफ्यूज टू बी स्केर्ड ऑफ द वाइट विजिटर. उन्होंने क्या कहा? मुझे डर नहीं लगता है वाइट विजिटर से. ही थ्रू हिज बुक एट द वाइट विजिटर. और जब वो वाइट विजिटर वहाँ आया तो उन्होंने अपनी बुक उस पर फेंकी. वेन द विजिटर मूव्ड इट्स हेड आउट ऑफ द वे. वेन द विजिटर मूव्ड इज मतलब उसने अपना जब सिर हिलाया वहाँ से, दैट टाइम ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ घोस्ट. तब उन्हें पता चला कि उन्होंने जैसे सिर हिलाया, क्योंकि भूत लोग ऐसा नहीं करते, तो तब उन्हें पता चला कि वो एक भूत नहीं है, घोस्ट नहीं है. ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड. और तब मिस्टर जो डॉक्टर नॉर्टन थे अपने बेड से नीचे उतरे एंड पुल्ड द वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स फेस. और तब उन्होंने वाइट क्लॉथ जो उसके मुंह पे था वो खींच लिया वहाँ से विजिटर के फेस से, टू रिवील दैट इट वॉज एक्चुअली मिस्टर कूपर. और तब उन्हें पता चला, वो एक्चुअली बताने के लिए कि ये मिस्टर कूपर है. ऐसे उन्होंने ये मिस्ट्री सॉल्व की. देन द 8th क्वेश्चन इज, वाई कुडंट मिस्टर कूपर बाय ब्लैकवुड हाउस? वॉट डिड ही डू अबाउट इट? आई रिपीट द क्वेश्चन, वाई कुडंट मिस्टर कूपर बाय ब्लैकवुड हाउस? क्यों नहीं खरीद पा रहे थे वो ब्लैकवुड हाउस मिस्टर कूपर? एंड व्हाट डिड ही डू अबाउट इट? और उन्होंने उसके लिए क्या किया? तो द आंसर इज, मिस्टर कूपर कुडंट बाय ब्लैकवुड हाउस बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड इट. उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अफोर्ड कर सके. इसीलिए ही डिसाइडेड टू स्प्रेड रूमर. इसलिए उन्होंने क्या किया? रूमर स्प्रेड करना, अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि दैट द हाउस वॉज हॉन्टेड, कि वहाँ पे भूत है वगैरह. सो दैट नो वन वुड वॉन्ट टू बाई इट, ताकि कोई उसे खरीद ना सके. एंड द प्राइस ऑफ द हाउस वुड फॉल. और उस हाउस की कीमत धीरे धीरे कम होने लगे. एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम डाउन. और वो वेट कर रहे थे कि वो प्राइस और नीचे उतर जाए. कितने? £2 800 पाउंड तक नीचे उतर जाए. एंड देन ही वुड बाय द हाउस. और उसके बाद वो हाउस अफोर्ड 800 पाउंड में अफोर्ड कर पा रहे थे, तो वो तब तक अगर उसकी प्राइस नीचे गिर जाएगी तो वो खरीद लेंगे. इसीलिए वो ऐसी अफवाहें फैला रहे थे. सो डियर चिल्ड्रन, आई होप you would have understood the textual exercise as well as this worksheet, meanings and question answers. So you have to complete this meanings and question answer in your FNB with black and blue pen. Thank you, dear children.